As per the Ayurveda, Samprapti Vigatan is important for breaking the pathogenesis, and I hope that this tea break was definitely bringing in the Samprapti Vigatan of our yawns and sleep. So I hope all of us will remain attentive in next coming sessions. Before proceeding to the next session, we have an announcement to make. We would like to take a moment to acknowledge the difficult times that Maharashtra is going through due to the recent floods. Our thoughts and prayers are with those affected, and we deeply empathize with the challenges faced by all. Keeping the safety and well-being of everyone as our top priority, for participants who couldn't attend today's seminar, an online free session will be conducted by the Foundation. We hope this session will bring knowledge and positivity even in these testing times. Details of the seminar will be announced soon. So, all of you are waiting for the prize distribution ceremony. So before starting the prize distribution ceremony, I would like to give a brief about Vaidya Gokte Memorial Foundation and awards given under this foundation. Vaidya Gokte Memorial Foundation was established with the sole motto of propagation of knowledge. It is a platform created for sharing lifetime work of our grandfather, respected Vaidya Ramachandra Ballar Gokte sir, and to carry forward his vision. This initiative serves as an authentic source of information, igniting young minds through his writings, teachings, and research. Our aim is to reach practicing Vaidyas, students of Ayurveda across all systems of medicine, and even the common people, making knowledge truly universal. Our foundation has been conducting case presentation competitions every year for practitioners, PG scholars, and teaching faculties to encourage authentic Agni Karma and Viddha Karma practices. Each category gets rewarded with a cash prize, memento, and a chance to present their case in front of all the eminent speakers and dignitaries at the national seminar. The Gokte Parampara is a proud legacy of Ayurvedic physicians spanning several generations. To honor our grandmother, respected Vaidya Anagha Gokte ma'am, for her contribution in the field of Ayurveda, our foundation rewards young practicing Vaidyas with Vaidya Anagha Gokte Yuva Vaidya Puraskar. All of you must have heard about Vaidya Rabha Gokte sir. He was a friendly mentor and dedicated practitioner. In order to honor these qualities, recognizing exceptional dedication, knowledge, and contribution to the field of Ayurvedic education and mentorship, our foundation presents special award for all the Ayurvedic mentors who are guiding all the young bright minds. That is Vaidya Vishnudas Kirad Best Teacher Award. So, this is a brief introduction of all the awards that are being presented under our foundation. To move ahead, we'll now begin with the announcement of winners for the case presentation competition. This year, we had a large number of participants presenting cases in Agni Karma, Viddha Karma, and combined Agni Karma and Viddha Karma, covering a wide range of diseases and clinical scenarios. Based on the authenticity and the experience, we have concluded few awards. I request Dr. Purva to announce the names of prize winners. Thank you. For presenting the awards, I request all the eminent dignitaries to be on the dais. I request respected Vaidya Tapan Kumar sir, Vaidya Allat sir, and all other eminent speakers to be on the dais. I request respected Padmanabh Gokte sir, respected Samir Gokte sir, respected Nitin Thatte sir, respected Anjali Ghanekar ma'am, respected Dr. Chandana Virkar ma'am to be on the dais. I request respected Rishi Manivar sir to be on the dais, please. I request respected Chandrakumar Deshmukh sir to be on the dais, please. We will now begin the announcement of the winners for the case presentation competition. This year, we had a large number of participants presenting cases in Agni Karma, Viddha Karma, and combined Agni Karma plus Viddha Karma, covering a wide range of diseases and clinical scenarios. We are delighted to felicitate the 4 best cases today, while 12 other noteworthy cases will be given recognition prizes. Please note that these are recognition prizes and not consolation prizes.
I request Tapan Kumar sir to kindly felicitate all the winners. For the first place, we have Dr. Pankaj Tiwari sir for his exceptional Agni Karma case, receiving a memento, certificate and cash prize of 20,000. Second place, we have Ms. Aksa Khan, receiving a memento, certificate and cash prize of 18,000 rupees. In the third place, we have Ms. Pooja Shurira ma'am receiving a memento, certificate and cash prize of rupees 9,000. Ma'am, kindly come on stage. In the fourth place, we have Yash Kashyap receiving a memento, certificate and cash prize of rupees 9,000. Congratulations to all 4 winners. Next, we have the recognition prizes for other notable cases. These winners are requested to come at the backstage after the sessions are over and not come on the stage right now. Pankaj Tiwari sir for his Vidyakarma case, rupees 6,000 rupees. Krishna Samdar, rupees 3,000. Aradhya Mundane, rupees 1,000. Shraddha Joge, rupees 1,000. Rameshwar Dudhate, rupees 1,000. Posam Sivapriyanka, rupees 1,000. Adinath Nagre, rupees 500. Saili Shinde, rupees 500. Komal Pawar, rupees 500. Rohit Prabhu, rupees 500. Akash Avchar, rupees 500. And Akash Naik, rupees 500. Let's give them a very big round of applause for their remarkable efforts and clinical insights. Thank you so much, Purva. Now we'll move ahead with the most awaited Yuva Vaidya Puraskar. This year, we are delighted to felicitate 2 exceptional young Vaidyas who have shown remarkable dedication, skill and service in the field of Agni Karma and Vidya Karma. To felicitate them, I request respected dignitaries to kindly join us. Our first recipient, I would like to introduce him. Our first recipient for winning the Vaidya Anagha Gopte Yuva Vaidya Puraskar is Dr. Tukaram Umrani sir. Dr. Tukaram sir receives a memento, certificate and a cash prize of 20,000 rupees. I request respected Vaidya Tapan Kumar sir to felicitate him. To give a brief introduction of Dr. Tukaram sir, Sir belongs to Belgavi, Karnataka and has been serving Ayurveda with the motto Learn Ayurveda, Serve Ayurveda. He is an expert in Vidya Karma, Agni Karma, Kshara Karma and Pancha Karma. Give a big round of applause for Dr. Tukaram sir. Sir has won multiple awards, amongst which Ayur Yodha COVID Warrior Award was received during the tough times of COVID. Sir owns a 50-bedded Ayurvedic hospital at Karnataka and continues to provide daily 80 to 100 patients care at his Amruta Arogya Kendra. We congratulate Dr. Tukaram Umrani sir for his outstanding contribution and dedication for the Ayurveda. Now, I would like to announce our second recipient. Any guesses? Okay. So, our second winner is for the Vaidya Anagha Gopte Yuva Vaidya Puraskar is Dr. Ankit Ramesh Dhade sir. Give a big round of applause to Dr. Ankit sir. I request respected Vaidya Tapan Kumar sir to felicitate him with a memento, certificate and a cash prize of 20,000 rupees. To give a brief introduction, if sir is not available, can any of sir's friend receive the award on behalf of him?
Dr. Ankit Zade sir kindly be on the stage. Okay, to give an introduction, he has been an eminent speaker at national seminars, workshops and health camps. Sir is practicing Agni Karma and Viddha Karma in Nagpur, Gadchilori and Ashti area, conducting 3 OPDs daily and providing care across the multiple districts. Give a big round of applause to Dr. Ankit Zade sir for his remarkable achievement and dedication to the field of Ayurveda. Sir has been practicing Agni Karma and Viddha Karma in various disorders including autism, infertility, sport injuries and neurological conditions. Dr. Zade has actively contributed in health awareness, public health camps and free treatments in rural areas. I request all the dignitaries to be seated. As we celebrate today's winners, Dr. Ankit sir and Dr. Tukaram sir, let us remember that every award is not just a recognition but also an inspiration. So keep learning and providing society with your health care. And who knows, the next time we gather here, it might be your name that we call out for the award. Now we'll conclude. We'll move to the next special award, that is for the eminent speaker and eminent teacher in this field of Ayurveda. To present the award, Vaidya Vishnudas Kirad Best Teacher Award. To give a brief introduction of this award, this prestigious award recognizes exceptional dedication, knowledge and contribution to the Ayurvedic education and mentorship. This year, the award goes to respected Vaidya Uday Talhar sir. I request, give a big round of applause to respected Vaidya Uday Talhar sir. He will be awarded Vaidya Vishnudas Kirad Best Teacher Award in this conference. I request respected Vaidya Tapan Kumar sir to kindly felicitate him. To give a brief introduction about Vaidya Uday Talhar sir, as no introduction is needed, but sir has been serving the field of Ayurvedic education, inspiring countless students and practitioners with his knowledge, dedication and humanity. His teachings has shaped multiple students and Vaidyas, contributing significantly to Ayurveda's growth and excellence. I would like to give brief introduction of sir's education. Sir studied at KVTR Ayurveda College under Pune University. Sir has been curing patients since 31 years at Jalgaon and recorded over 30,000 plus patients' data. Sir has conducted more than 530 workshops and seminars. More than 7,000 students have trained under Uday sir's guidance. Sir's every milestone is a shining example for all of us. Sir is author of famous Vanyodaya Sangraha and currently working on a book that involves research on various diseases, drawing references from all ancient Samhitas. The book is designed to be such that it will be a valuable resource for all the Ayurvedic students and practitioners. Sir has received multiple awards. To name a few, Sir has been honored with Dhanvantari Award in 2018 and a world record of Yogya Vidhi of Agni Karma was conducted under Sir's guidance in Rishikesh. Words truly fall short to capture the depth of Sir's work and contribution. Sir is truly not just a teacher but a role model for all of us. Let us all applaud and welcome Dr. Uday Talhar sir to receive this award and conduct the keynote address. I request our respected guest Vaidya Tapan Kumar sir to give us and enlighten us about Ayurveda and give his few words. Hello everybody. I am extremely delighted and astonished to be a guest of honor and felicitating this wonderful Vaidyas, and I am extremely happy that the talent must be understood, explained, explored and recognized by the
proper NGOs. Gokte sir has started a great legacy of emergency treatment, and these are the galaxy of stars in the field of Agni Karma and Vidya Karma, through which Ayurveda in this era is popularly known about. I am very happy that this wonderful people have served the society and have not kept their legacy closed as previous Vaidyas used to do that, but they have opened their palms and taught their specialty to thousands of students, and they are also flourishing very nice in the society. And I am very happy that today we have recognized their specialty and their wonderful abilities to cure or help the ailing humanity. Thank you once again, and to all this, Jai Ho. Thank you so much, sir, for your kind words. We are truly honored to have such a stalwart with us today. There is one request. Dr. Pankaj sir, Dr. Aksa ma'am, Dr. Pooja ma'am, and Dr. Yash sir, kindly collect your memento on the backstage, and congratulations to all the winners. Now we'll move ahead. Let us all applaud and welcome respected Vaidya Uday Talhar sir. I request Vaidya Talhar sir to kindly proceed for his keynote. प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गापवर्ग द्वारम तरुलक्षरणम शिवम। मुझे की नोट पे बोलने को बोला था। क्या अग्निकर्म के की नोट के इस पे क्या बोलूं? सर जैसे सभी ने बोला कि सवेरे लीगल इलीगल एस्पेक्ट जो रहता है उस पर बात हुई थी। तो उसके लिए एक मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं। कहीं किधर जाके अग्निकर्म मैं सीखा नहीं, कहीं गया नहीं, और मैं भाग्यशाली भी हूं, उसकी भी बात बोलता हूं। तो जैसे मुझे संस्कृत के बारे में मालूम होने लग गया तो मैं सीखने गया। तो चंद्र कुमार है, काला मैडम है, या अमोल बंसोड़े है वगैरह, ये जो है गुरु का नाम बहुत ही हो रहा है। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं कभी सर को मिला नहीं, लेकिन मुंबई में व्यासपीठ का प्रोग्राम था, पाटनकर सर है यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी भी पहचान वैसे कर दी थी कि मैं राबो गोक्टे सर का एकदम परम शिष्य हूँ। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी कि आज मुझे एक गुरु भी मिल गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को समर्पण करने से क्या क्या नहीं मिलता है, ये भी मेरे लिए एक अवार्ड था। तो आज से एक पहल करना है कि क्योंकि उन्होंने जो रूल बताया ना, वो मॉडर्न प्रैक्टिस के हिसाब से उन्होंने रूल बोला है, लेकिन मुझे जिस दिन संस्कृत समझ में आया उस दिन मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है कॉलेज में। तो प्रणम्य जगत उत्पत्ति मीन्स इस यानी जो आस्तिक है उसको समझाने की जरूरत नहीं, जो किसे मानता नहीं उसके लिए, क्योंकि अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम ऐसा संस्कृत है। प्रणम्य जगत उत्पत्ति मीन्स इस प्रोग्राम की उत्पत्ति जो हुई है, जिन्होंने क्रिएट किया है, उस गोक्टे सर की जो पूरी फैमिली है और पूरा गोक्टे फाउंडेशन है, सब उनको मैं मन से प्रणाम करता हूं।
प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति, स्थिति हम और तुम, क्योंकि अगर हम और तुम अगर इस प्रोग्राम को नहीं रहेंगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम और सहारा कारण। इस प्रोग्राम को जो समारोह होने वाला है वो भी जो हैंडल करने वाले हैं, जो भी है, जो नाम लेना नहीं लेना रह गए हैं वो सभी उसमें आ गए। इतना अच्छा संस्कृत है ये मुझे समझ में आने लग गया। नहीं तो फिर मैं सबके नाम ले रहा हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो एक छोटे से श्लोक में एक, ये तुम फैशन समझो कुछ भी समझो, ये बोलना सीखो, क्योंकि इसमें सभी आ गए। हम तुम आजू बाजू की जो नहीं है वो भी आ गए। ये संस्कृत के बारे में मुझे नॉलेज होने लग गया। तो की नोट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, एक केस बता दूंगा। मेरे पीपीटी सिर्फ पहले के 2 श्लोक बता देना। एक केस बता देता हूं और ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और कुछ बातें बोलता हूं कि जैसे मैं कैसे सीखा हूं। जैसे रामदास सर ने बताया वैसी उससे गई गुजरी हालत थी, क्योंकि सर तो गोल्ड मेडल कुछ तो भी करके, कुछ तो लिख के गोल्ड मेडल मिला है। मुझे तो वो भी नहीं। मुझे यानी अग्निकर्म बहुत जगह बोलता हूं कि अग्निकर्म सर बोरसे सर मैं सुश्रुत में से पढ़ूं कि चरक में से पढ़ूं, ऐसा मैंने गुजराती सर को पूछा था। इतना खराब हालत थी मेरी। तो शलाका सिर्फ मैंने पकड़ना सीखा। मैं तो सिर्फ शलाका गर्म करना है और सामने वाले को लगाना है, इतना ही मालूम था। इसके सिवा कुछ भी नहीं मालूम था। एक केस अभी मेरे लड़की के इसमें मैंने किया था, एक टंग का वो बोलता हूं, और एक 2 केसेस जब मुझे लगा कि पढ़ना जरूरी है, तो वो भी एक मुझे मालूम हुआ कि अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी। कैसे? तो सिर्फ और सिर्फ मैंने संस्कृत और आयुर्वेद ही पढ़ना, उसके रूल फॉलो करना चालू हुआ। क्योंकि मैंने पीएचडी किया था एक ओपन यूनिवर्सिटी में से, नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने मुझे इतने रूल बताना चालू किया, इतने रूल बताना चालू। बोला आपकी पीएचडी मिलने से मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है। मैं कुछ अच्छे से पढ़ाई करूंगा, कुछ सिस्टमेटिक बोल सकता हूँ, कुछ सिस्टमेटिक लिख सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर छोड़ दिया मैंने, मतलब मुझे नहीं करना है। केस थी उसको, तब मैं म्यूकोजल सिस्ट बोलता था, लेकिन नहीं, अभी मैं जलार्बुद बोलता हूं। सामने वाले को समझो या मत समझो, क्योंकि आयुर्वेद वर्ड यूज करने से आपको ज्यादा कोई पूछता नहीं है, और संस्कृत बोलने से अपना आयुर्वेद वाला भी ज्यादा अपोज करता नहीं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि अपन सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं वो समझ में उसको भी नहीं आता है। और अच्छा ऊपर से नीचे अच्छा इंप्रेशन होता है अपना, इसलिए कभी भी संस्कृत की टर्मिनोलॉजी यूज करना है। तब मैं उसको म्यूकोजल सिस्ट बोलता था। आया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसे करना है, बोला जाओ सर्जन के पास जाओ। सर्जन ने उसको बोल दिया कि इसको जलाना पड़ता है। और उन्होंने उस टाइम बहुत साल पहले की, मैंने 20 साल पहले 20-25 साल पहले की बात है, तो उसने बोला था कि डॉक्टर वो तो 3000 रुपये बोल रहा है। बोला फिर मैं क्या करूं? नहीं, बोले सर ज़्यादा पैसे हो रहे। बोला मुझे आधा पैसे, क्योंकि वो जलाता हूँ ऐसा बोला। बोला सुनो जलाता तो मैं भी हूँ। बोला अपन भी जलाएंगे। बोला मुझे कितने देंगे? बोले आप बोलो। बोला 1500 रुपये दे। फिर उसने तुरंत 1500 रुपये दिए। मैं इतना, ये मेरा हाथ में ऐसे ट्रेमर्स थे, तो लिए पैसे और जेब में डाल दिए। बोला रूल है कि पैसे रिटर्न नहीं करना है, अभी क्या करना है, कुछ भी करके करना है। फिर राम 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 बोलते बोलते मैंने अग्निकर्म शलाका गर्म की, करना है अग्निकर्म करना है। उसको बिठाया, उसको ऐसे ही बैठे रहना बोला है। क्या खाया क्या पिया वो भी नहीं पूछा। वो अलग कम्युनिटी का था, इसलिए कुछ उसके सामने भी जोर जोर से राम राम नहीं बोल सकता था। मन ही मन राम राम बोल रहा। फिर 1 2 3 और वो टिक गया पीछे। जैसे ही टिक गया मुझे लगा इसको कुछ न कुछ हो गया, कुछ आता नहीं था ना मुझे तब। मुझे स्वेटिंग हो गया, मेरे मुंह में से आवाज नहीं निकल रही थी, पूरी तरह से डर गया। मुझे शलाका बहुत
वो बहुत ही जड़ लग रही थी, बहुत वजन हेवी लग रही थी, सो हेवी। मैंने वो कैसे तो भी करके टेबल पकड़ा, पीछे बैठा, फिर उसको देख के वो ऐसे किया, फिर मैंने पानी पी के बोला क्या हुआ, तो बोले डॉक्टर आप क्यों डर गए। बोला मैं नहीं डरा, और मैं सलाकर रख के पीछे गया और तुरंत जो मिले, मैं वो शतावरी लोगों को लिख के देता हूँ, खाता नहीं, बहुत कड़वी लगती है, कड़वी मीठी रहती है, वो भी खा लिया, पानी पिया। तब सोचा है कि पढ़ने सिवा कुछ आने वाला नहीं है, यानी डेयरिंग करना है, किधर भी कुछ भी करना है ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है, बगैर पढ़े कुछ भी नहीं आ सकता है। और जैसे तपन सर ने भी बोला कि आपको संहिता पढ़ना ही चाहिए, तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। आज ध्यान में रखो कि मैंने आज तक कहीं पे भी जाके किसी के यहाँ पे कुछ भी पढ़ा नहीं है। अग्निकर्म किससे सीखा नहीं, सिर्फ हमारे कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज बोराड़ी में माधव शास्त्री शेंडे सर आए थे, उन्होंने दिखाया था। यहाँ हम तब मेरे ख्याल से बोरसे सर कुछ महीने या कुछ साल हमारे कॉलेज में थे, तो कुछ वहाँ के तब के लड़के जो थे उनके कुछ एक वसंत भंडारी वगैरह ऐसे लड़के थे मेरे साथ में, तब मेरे सीनियर वो थे, तो वो हम ऐसे ही देखने गए कि किसकी भीड़ है, इस वजह से बस देखा और तब मैंने किया था अग्निकर्म। उसके बाद मैं भूल गया। तो बाद में जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते गया, जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते गया, तो वैसे वैसे मुझे अच्छा लगने लग गया। फिर अच्छा लगने लग गया, फिर मुझे पैसे मिलने लग गए, पैसे मिलने लग गए तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छा होने लग गया है। तो वो है, तो जो श्लोक पहले इसको नेक्स्ट कैसे ऐसे है? मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ, सिर्फ केस बताता हूँ और तुरंत, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। अग्नि जो परिवर्तन वगैरह जो इन्होंने बताए थे सर ने या इन्होंने, तो वैसे अग्नि में ही परिवर्तन की शक्ति है, एक बात है। और अग्नि का महत्व है, ये भी कुछ इसमें ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने वन्योदय संग्रह लिखा है, तो मॉडर्न लैंग्वेज में, यानी कोई भी लैंग्वेज हो, संस्कृत में एक आध अल्फाबेट भी क्यों है ना, उसके लिए उसके पीछे भी कुछ न कुछ मतलब है, वो छोड़ो, अभी वो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। लेकिन अग्नि मीन्स जो दुर्गुण दुर्गुण हटाता है, वो अग्नि, परिपक्वता की तरफ लेके जाता है, वो अग्नि। वन्नी तो वहन जो परिपक्वता की तरफ लेके जाता है, जो गतिशील है, वो बताया है, इसलिए वन्नी। तो वन्योदय संग्रह लिखा गया है, वो कोशिश की मैंने लिखने की। तो जैसे वो लिखते थे अथा तो अग्निकर्म विधि मध्यम व्याख्या से हमारे, तो आज भगवान धन होते, मैंने भी लिखा है अथ यथा आत्मगतम शलाका अग्निकर्म व्याख्या से हम, यानी मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिखा है। एक कोशिश वैसे की हुई है। तो बस ये एक श्लोक बोलता हूँ। क्षारादग्निगर्यान क्रियासु व्याख्यातः तद्दग्धानाम रोगाणाम अपुनरुद्भव भैषजक्षसारहि असाध्यानाम तत्साध्यत्वाच्च। हम कॉलेज में यही पढ़े हैं कि अग्नि कर्म से जो साध्य होता है, कि जो भैषज क्षार कर्म शस्त्र कर्म से नहीं होता है। हमारे सर गुजराती सर बोलते कि रोज एक श्लोक, वही श्लोक रोज पढ़ो, रोज मतलब अलग निकलता है। ये इसका श्लोक का मतलब ये भी है कि अग्नि कर्म यह लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ये भी फिर ये समझ में आने लग गया, फिर शलाका कैसे पकड़ना है वो सीखने लग गया। इस वजह से फिर मुझे एक एक मेरा कॉन्फिडेंस, वो भी बोला मैंने कि जैसे पैसे मिलते गए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, शास्त्र पढ़ने के पहले सिर्फ शलाका गर्म करके लगाना सीख लो। विद्ध में तो भी पॉइंट है। अग्निकर्म में त्वंग मास शिरा स्नायु संध्यस्थ स्थिति अत्युग्र रुजा, जहां अत्युग्र रुजा है वहां आपको अग्निकर्म करना है। एकदम सीधी बात है, वो कहीं पे भी हो। जो अत्युग्र रुजा बोला है, सिर्फ रुजा नहीं बोला है, त्वंग मास शिरा स्नायु संध्यस्थ स्थिति रुजा नहीं बोला है, अत्युग्र रुजा बोला है। एक्चुअली 2-3 अल्फाबेट बढ़ गए उसमें,
तो भी उन्होंने क्यों लिखा है, तो जो अत्युग्र ऊर्जा किसके लिए, जो पेशेंट के लिए, मीन्स किसको, जिसको जो अनबेरेबल पेन थे उसको अग्नि कर्म से वो बेर होना चालू हो जाएगा, ये उसका मतलब है। इसलिए अग्नि कर्म में सबको बोलता हूं, आप शलाका गर्म करो और लगाओ। पंकज तिवारी की एक केस थी, बहुत हुआ था, तो उसके पहले मेरे ख्याल से 1 आध साल पहले उसका फोन आया था, सर ये माउथ में ग्रोथ है कैंसर की। मतलब यार कैंसर मत बोलो, क्योंकि कैंसर बोलने से हम ये लीगल इसमें फंसते हैं। कैंसर मतलब जो कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट है उनको अभी तक कैंसर समझ में नहीं आया, हमको कहाँ से समझ में आएगा। कैंसर हमको समझता नहीं, ये बोलना सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर वो बोले सर मैं क्या बोलूँ, मैं बोला वायु ऊर्चित कठिन सुप्तता, बोले बहुत लंबा वर्ड होता है, मतलब कोई पूछेगा नहीं ये वर्ड बोलने से, उल्टा सवाल ही नहीं करेगा। कुछ तो भी मेरे ख्याल से चंद्र कुमार इनको मालूम है, मुझे लगा पेपर में न्यूज आई थी कि कुछ तो भी हुआ था, कोई MBBS MD मेडिसिन वाला आदमी ऑब्जेक्शन ले रहा है, मतलब तो उसका क्या संबंध आता है। भयंकर कुछ तो भी नाम था उसका, जो भी है, कैसी का नाम, जो शल्य का वो शल्य का बोलो और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से बोलो। अभी आते वक्त एक ने मुझे बोला कि ये तुमको कैसे क्या अलाउ है, मतलब अलाउ म्हणजे कि हम 5.5 साल ऐसे ही झक मारा है क्या। ने बोले ये सर्जरी कैसी की, मैंने बोला उसका, मैं आयुर्वेद से सर्जरी किया, वो वात पित्त ऐसा बोलने लग गया, मुझे मालूम नहीं था, तो भी मैंने बोलना चालू किया था। तो बोल रहा कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब फिर ऐसा करो, मुझे इसकी सर्जरी आप आयुर्वेद के हिसाब से समझाओ। बोले हमको आयुर्वेद नहीं आता, मतलब झक मारने को हमको एलोपैथ आएगा। एक तो 5.5 साल आयुर्वेद भी पढ़ रहे और एलोपैथ भी पढ़ रहे, और निकलने के बाद अभी भी इसके लिए लड़ रहे कि हमको परमिशन देना चाहिए, हमको परमिशन देना चाहिए। मैं एलोपैथ यूज करता नहीं, आप मुझे सवाल मत पूछो। एक तो ऑंको सर्जन ही पूछा था, आंख निकाली थी, बोले कैसे क्या वो आंख निकाल ली थी उसने, मैंने क्षार कर्म से वो वुंड हील हो गई थी, कैसे क्या हुई, मतलब आप भरोसा नहीं करेंगे। नहीं बोला अरे दिख रहा है भरोसा करने जैसा, मतलब हम पहले पूजा करते, मंत्र पढ़ते, तो बोले तुम झूठ बोल रहे, मतलब झूठ बोल रहे, मैंने पहले ही बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई समझाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है, कोई टाइम वेस्ट करना नहीं। वही है कि कैंसर के पेशेंट अच्छे केस, हम आयुर्वेद वालों ने बोलना नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई भी, क्योंकि न ही सर्वविकारणाम नामधेय, नामकरण बोला नहीं है, करो भी मत कुछ भी नाम। इतने सिंड्रोम आने वाले, इतने सिंड्रोम आने वाले, हमारे तुम्हारे नाम से भी सिंड्रोम आएंगे, हमारे तुम्हारे नाम से वायरस आने वाले हैं। उनके इसमें प्रोटोकॉल हो रहा है, अपने इसमें चिकित्सा हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, उनके इसमें प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट नहीं है। बस मैं एक श्लोक बताता हूँ और एक केस बोलता हूँ। वो केस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आता है प्रॉब्लम, फिर उससे तो हम सीखेंगे ना। सर ने बोला है कि ठोकर खाएंगे तभी सीखेंगे। अरे हुआ ही कुछ, हुआ ही नहीं। एक तो कॉलेज बहुत, मैंने इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है कि जैसे अभी मेरे दोनों लड़के BMS है, लड़का BMS MS हुआ है और लड़की BMS है। वो अपसेट रहते कि क्या BMS करके क्या हुआ। अरे बोला मैं कमा रहा हूँ ना पैसे। एक तो क्या होता है, हम BMS वालों को क्या होता है कि एक तो एडजस्टमेंट, यानी बहुत मजबूरी से एडमिशन लेते हैं, वहाँ से जो मजबूरी चालू होती है प्रैक्टिस करने को, कि कैसे प्रैक्टिस करना है। अभी एक लड़का आया था अनुरुद्ध करके, बोले सर इंटर्नशिप खत्म होने के 7 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था आयुर्वेद, लेकिन जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हो गई अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे बोला शलाका ले गरम कर लगा। कौन सी शलाका? कोई भी। मैंने मेरे यहां पे चम्मच से, स्पून से अग्निकर्म किया है, करके बताया, एविडेंस है मेरे पास में। करो, क्योंकि चतुष्पादी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन चम्मच से अग्निकर्म क्लिनिक में करेंगे, लोग पैसे देंगे नहीं, और लोग पैसे नहीं देंगे, घर वाले हकाल देंगे अपने को। इसलिए
चम्मच से नहीं, फिर शो करो, क्योंकि शास्त्र के खिलाफ नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही बोला है, शास्त्र से ही चल रहा हूं मैं, उससे नहीं चल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से भी मैंने वो क्लिप से अग्निकर्म के वो लगा, ये बंद करके, तो इसकी मुझे अथ यानी सभी मंगलाचरण उसमें आ गए, ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत कुछ बहुत पूजा पाठ करता हूँ ऐसा भी नहीं है, नहीं करता हूँ ऐसा भी नहीं, और करता हूँ ऐसा भी नहीं है, बहुत ही इस पे भरोसा करे उस पे नहीं। लेकिन ये कितना अच्छा है कि इसमें बोला है कि अथ, अथ मीन्स सब आ गए, तुम कोई भी जाति के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, अथ मीन्स आ गए। आयुर्वेद और वेद टैटू है, एक मिनट पॉज करना है। आयुर्वेद वेद जो है ये इस सब्जेक्ट का ये नहीं है, लेकिन तो भी बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए है, सभी जीव है उनके लिए है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है वो कि एक सिंपल एक कम्युनिटी के लिए है, एक रिलीजन के लिए, एक कास्ट के लिए है। ये जो अपने वेद आयुर्वेद है, उसमें का आयुर्वेद है, ये सभी के लिए है, ये बात समझ लो, इसलिए उसको न्यूट्रल होके ही पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी केसेस बताता हूँ, ये सिंपल है, और मैं रनिंग कमेंट्री करता हूँ। अभी ये अंकित झाड़े को जिसको मिला था, उसके तो एक निशान है मुझे, उसने सलाह का उसको देते वक्त उसने मुझे भी लगा दिया था अग्निकर्म। कहाँ पे अंकित हाथ ऊपर करे तो अच्छा है, नहीं दिया, हाँ यस। तो ऐसे भी हुआ है, तो मैं रनिंग कमेंट्री और बिल्कुल जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनको वही सिखाता हूँ, करो कुछ हुआ तो मैं हूं, फिर बाद में पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसे ही तैयार हुआ हूं। वो गलत है, आपको पहले पढ़ना जरूरी है और फिर करना है, क्योंकि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी यानी मीन्स तुम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो सही है, लेकिन जब हम करना चलेंगे और तो पढ़ेंगे, उसके आगे आप बराबर, आज मैं कौन के पहले कौन बोलता था, अभी कदर बोलता हूँ, उस कदर को मैं उस वक्त 50 रुपये लेता था, अभी मिनिमम 500 चार्ज करता हूँ। और वो भी मैंने अभी बाहर टैक्टिस बताई, और सब टैक्टिस अडॉप्ट करो। ये बहुत अपने लोगों को, आयुर्वेद वालों को ऐसा रहो, सात्विक रहो, कुछ नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, कुछ सात्विक नहीं है, सत्व रज तम है। मेरे पास स्टूडेंट भी आए थे अभी, उनको भी मैंने बोला बिल्कुल सब टैक्टिस अपनाओ। मैंने अग्निकर्म करते कदर में सर हर जीपी के पास गया, कितने पैसे मैं तुमको, तुमने 10, तुम डॉक्टर पूछता था तुम कितने लेंगे, मतलब तुम बोलेंगे उतने, फिर हमको कितने देंगे, मतलब 10 रुपये तो उसने दिए तो 5 रुपये तुमको, बोले फिर हमारे लिए ज़्यादा लेंगे, मतलब नहीं। फिर वो एक ने पेशेंट भेजा, उसने 1000 लेने को बोला, मैंने उसको 500 दे दिए। हमारे मैडम बोले 500 रुपये उसको दे दिए। अरे बोला 50 लेते थे, 500 मिले हैं, 500 गए तो गए, वो मत ध्यान दो। तो वो भी टैक्टिस अपनाए और अपनाओ, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। कुछ सात्विक त्रिगुणात्मक प्रकृति ध्यान में रखना, समतोल रखना है, एक ही गुणात्मक बनो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तामसिक ही बनो, सभी बनो, सबका ये करना है, रन करो। ये आज फर्स्ट टाइम है, हाँ, इसलिए फर्स्ट सेटिंग में मैं सिर्फ ये 3 ड्रॉप निकालने वाला हूँ, है। तो अभी मैं 3 ड्रॉप निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद में कितने पैसे लगते, क्या लगते, सब बताऊँगा। हाँ हाँ, आज कुछ पैसे का मैं बोल रहा नहीं, ठीक है। हाँ, और इस टैटू में हमको मांसगत अग्निकर्म करना है, यानी कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। एज अ कंसर्न यानी पेशेंट से कैसे बात करता हूँ, वो भी ये बात कब करने लग गया हूँ, वापस ध्यान में रखना है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी रत्नादि सत असत ज्ञानम न शास्त्रात एवं जायते। सिर्फ रत्न पढ़ के तुमको समझने वाला नहीं है, उस रत्नों के साथ में तुमको खेलना पड़ेगा। और रत्न कौन से है, तो अपने पेशेंट, अपने रत्न है, उनसे खेलो। कोई किसको कुछ तकलीफ है, मैं डायरेक्ट उसको उठाओ, और मैंने कितना भी बोला कि उसके एक पिछवाड़े में लात मारो, तो आप नहीं मारने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग वैद्य हैं।
गलती से भी क्यों ना हो, जिसके पास नॉलेज है उस फैकल्टी में हम आ गए, गलती से भी क्यों ना हो, मजबूरी से भी क्यों ना हो, आ गए, और उससे बहुत पैसा मिलता है। जैसे सर ने बोला था, उसने जितने पैसे ले उतना मुझे खर्चा आया, बाकी का मैंने लिया। एक केस में अभी होंगी इसमें तो दिखाता हूं, उसको तो मैं खुद डल रहा था 1,10,000 बोलने को, माउथ में ग्रोथ थी, बोला तुमको पैसे लगे, हाँ सर बोलो बोलो कितने, फिर वापस बोला फिर 1,10,000, तो मेरी तरफ देखा, बोला देखो, बोला हाँ, और मैं बहुत खुश हो गया, बोला अरे क्या बात है। तो मुझे ग्रुप में ये पूछा कि सर उसने पैसे दिए क्या, उसने मेरे ख्याल से कुछ तो भी 8-9 हज़ार रुपये दिए। बोला 1 लाख छोड़ने की हिम्मत मुझ में है, छोड़ दिया मैंने, दूसरों के जैसे रोते नहीं रहूंगा, क्योंकि 10,000 भी बहुत हो गए थे। रन करो, हुई क्या तकलीफ, कोई पैरामीटर यूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। है अभी सर एकेडमिक केस में है भाई, ये रूल है, ऐसा है, क्योंकि हम CCRS में भी थे सर अपन मुंबई में। मैंने वही बोला कि हमने 5.5 साल यहाँ जो किए वो रूल फॉलो किए, और रूल का कुछ संबंध ही नहीं इधर। तो खैर चट आवाज 1 mm 2 mm कुछ नहीं, किसने कुछ पूछा तो देखो बहुत मजा आता है। कोई सर्जन पूछे ये क्या किया, एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने पूछा ये तो क्या होता है, मतलब चट आवाज, शब्द प्रादुर्भाव। तो बोले शब्द प्रादुर्भाव बोलो, बोलते बोलते मैं सिखाऊं, मला आकाश महाभूत जो वायु रहता है जब वो निकलता है तो शब्द की उत्पत्ति होती है, बराबर है। समझो गलत भी है तो उसको कहां समझ रहा है, उसको भी समझ रहा है, हमको भी नहीं समझ रहा है, ये बताया। और ऐसे ही बोलो, वो कोई जरूरत नहीं, मॉडर्न लैंग्वेज में समझाने की जरूरत नहीं है। वो हो मैं अब मुझे चाहे गलत बोलो, अभी तपन सर मतलब बोले नहीं ऐसा रहता वैसा, मतलब कुछ नहीं, ये हम रेडीमेड नॉलेज दे रहे इन लोगों को, और ये हमको कंपाउंडर के ऊपर नहीं समझ रहे, कसम से बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत है वो, बंद करो। इसमें चट आवाज, तत्र शब्द प्रादुर्भाव, हाँ ये देखो कपो, ये जो चट आवाज इसकी नहीं है, क्योंकि उसी वक्त बाहर कोई तो भी कपड़े धो रहा था, तो चट आवाज, इतनी बड़ी आवाज नहीं आती। नहीं चंद्र कुमार जी, यानी ऐसा ना हो कि चट आवाज जोर से निकाला ऐसा, तो इसलिए रन कर। वो तो वरना हुई तकलीफ थोड़ी सी हुई ना, मेरी कुछ गलतियां हैं, ग्लोव्स नहीं पहन रही है, वो पहले क्या किया था, अभी ग्लोव्स वगैरह पहनता हूं, और पहनना अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। कपोत वरना आना जरूरी है, बस अभी बंद करो, चालू नहीं किया मैंने इसके। हाँ अल्पश्वयतु दिखाई दे रहा है, अभी वैद्य विकास कर रहे हैं, हाँ करो अल्पश्वयतु, कोई तो भी विकास करके स्टूडेंट था, वाला डर मत कर, करो उस पे करो चारों तरफ से, क्योंकि मैं तो सामने वाले को लगाना है, बस इतना ही मालूम था मुझे, क्या होगा देख लेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, बर्न की ट्रीटमेंट करेंगे, ये सोच आने तो डरो मत, बराबर परफेक्ट। जब कुछ आता नहीं था तब मैंने एंटीबायोटिक्स भी यूज किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है, दर्द हुआ ये भी बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा कुछ नहीं कि एकदम मुझे आप हो गया और मैं यूज करने लग गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो करो। लेकिन आज मैं आपको बोलने वाला मिल गया हूँ कि कोई जरूरत नहीं किसकी। रन ये टैटू निकालना था, लेकिन पेशेंट के सामने बोल रहा हूँ, पेशेंट पैसे का सुन के तब से आया नहीं, लेकिन अगर किसको याद होगा तो यहाँ पे 3 डॉट थे, उसमें का एक डॉट जो है सिर्फ इतना ही दिख रहा है, कोई स्कार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है खास। 1 साल हो गया होगा ना? हाँ 1 साल हो गया डॉक्टर। मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले अग्निकर्म, ये 2-3 महीने पहले का था, और वो जो पहले की थी वो 2 साल के पहले बात की थी। कंपेयर कर सकते हैं, वो 3 डॉट थे वो तो गए, लेकिन मामूली स्कार है, लेकिन ये भी तो नेक्स्ट क्लिप बताता हूं। इथं वारीत काढलं होतं सर, इथं आपल्या कॉलेजच्या बाजूलाच होतं। हा माणूस जो आहे
सॉरी, ये आदमी जो है ये निकालने के बाद में, और मेरा लड़का था, उसका कोई क्लासमेट था, बोले अगर तेरे पिताजी ने ये निकाली ना तो मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करूंगा, एलोपैथ भूल जाऊंगा, एलोपैथ वालों को कुछ नहीं आता है। एक्चुअली रास्ते पे बारिश भी चालू थी, रास्ते पे निकाला है, क्योंकि वारी में ऐसी कोई सोए नहीं रही थी वहां पे। तो पेशेंट आया, तो निकालने के बाद वो बोलता है कि मुझे फोन दो, गिव मी योर फोन। बोलो अरे तो क्यों, वो फटे हुए कपड़े और एकदम ऐसे क्या बोल रहा है। तो बोले आपने ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन कैसे क्या कर दिया। अरे बोला ये अच्छा है क्या बुरा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने, मैंने बोला फोन दिया, वो एकदम इंग्लिश बोलने लगा। बोला चलो भाई लो फोन लिया। तो उसने उसके पोते को फोन लगाया जो MS कर रहा था फाइनल ईयर को, और उसने बोला कि तुझे मैंने बोला था ये निकालना है, तो तूने बोला था ये इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ये करना होगा। ये आदमी ने यहाँ पे रास्ते में 2 मिनट में निकाल दिया। वो निकाला था मैंने। ये बता रहा इसलिए हूं, ये आप भी कर सकते हैं। और आप तो इतने अच्छे लोग हैं कि आप आके यहाँ पे चुपचाप इतना सुन रहे हैं। तो हमने कभी ऐसे सुना, कहाँ जाके बैठा, ऐसा कभी नहीं। लावून दिला मी फास्ट लावून दिलाय फास्ट थंड वाटण्यासाठी. फास्ट रन करो। और मैं भी डर रहा हूं उसमें, मैं भी डर रहा हूं, मैं नहीं डर रहा हूं ऐसा नहीं है। और ये केसेस इसलिए बता रहा हूं तेव्हाच ना क्योंकि शूल में इतना पैसा नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। हाँ बस नहीं। तो वारे में भी हमने रास्ते पे निकाला है। तो बस की नोट के बारे में बोलना है, शला का पट्टे से पकड़ना सीख लो। और कभी कभी सुश्रुत संहिता 12वां अध्याय पढ़ो, और उस 12वां अध्याय में का कुछ भी डिफिकल्टी हो मुझे कभी भी फोन करना है। सर वो फाइल बैक जाओ, अब बैक। तो कभी भी मुझे, कभी भी आप पूछ सकते हैं, कभी भी, अभी भी कुछ क्वेश्चन हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के हिसाब से पूछो। क्योंकि एक बार एक कमेटी आई थी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में, तो वहां पे मुझे बुलाया था। मैं टंग के ऊपर की, एक मिनट बैक जाओ, भोगे 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 भोगे, ये अभी की केस है। इसमें भी मैं क्या सिखाऊं, ये रनिंग कमेंट्री की है। ये भी मैं बताता हूँ, ये देख लो, ये मैं लास्ट केस बता रहा हूँ अभी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में गया था, वहां पे कमेटी आई थी, टंग के ऊपर की ग्रोथ निकाल रहा था। यूनुस सोलंकी सर थे मेरे पास साथ में, डिप्यूटेशन पे आए थे वहां पे। तो उन्होंने तभी मुझे बोला कि सर उदय जी जरा संभाल लेना। बोला ठीक है सर। तो जो कमेटी के चेयरमैन थे वो BMS MD थे। तसं काहीच नाही, तसं काहीच करायचं नसतं बेटा. असं फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप बहुत एलोपैथ के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। ऊपर असं गंध से तो उन्होंने मुझे बहुत एलोपैथ के क्वेश्चन, मैंने दिए जवाब। फिर मुझे भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस है। उतने में एक यंग लड़का आया, उसने बोला कि आप एंटीबायोटिक्स कौन से यूज करते हैं। फिर मैं बहुत ही इरिटेट हो गया। मैंने बोला मैं यहाँ एलोपैथ ड्रग की बात छोड़ो, मैं एलोपैथ टर्म भी नहीं यूज करता हूं, आगे बोलो। और क्यों तुमको समझाओ एलोपैथ के टर्म। तो उसने अप्रिशिएट किया। तो मैंने बोला तुम क्या पढ़े लिखे हैं। तो वो बोलता है कि मैं MBBS MD हूं। तो ऐसा भी है कि हमारे आयुर्वेद वाले सर, या मैं जितने कॉलेज में जाता हूं वहां पे भी वही बोलता हूं कि आपका एकेडमिक का ठीक है, सब बातें ठीक है, आप समझा रहे हैं मॉडर्न के हिसाब से, समझना चाहिए, ये भी बात सही है। ज्ञान तो मिलना जरूरी है ना, किसका भी, कोई गलत थोड़ी होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम लोगों को ये खड़ा नहीं कर रहा है। रेड बिल्कुल। साला का लाइव भी है. अभी इसमें पकड़ के रखा, मैंने से पकड़ के रखा. पॉज करो, पॉज एक मिनट। इसमें वेरिकोसिटी है, हाथ को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या ज्यादा शहाना या क्या बोलते आप, वो ऐसा हुआ
कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही देखना है। फिर हार्ड लग रहा था, तो भी कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि ये वेन हो सकती है, वेरिकोसिटी हो सकती है। तो भी नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिषु च अग्निकर्म कोरियात, तो उससे ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहा, नहीं रुका। 20 मिनट हुए, यहां तक कि मेरी लड़की थी साथ में, वो बोल रही थी कि मैं स्टिच लेती हूं। बोला हाँ, मैं भी डर गया था, मुंह पूरा तरह से सूख गया था मेरा भी, लेकिन बोला नहीं रुको, कुछ नहीं, त्रिफला चूर्ण, मैं पेशेंट के सामने वरा चूर्ण बोलता हूं। वरा चूर्ण माउथ गार्गल करते ही तुरंत 3 मिनट के अंदर वो पूरी ब्लीडिंग स्टॉप। सब उसमें क्लिप में आया हुआ है, वो देखो पूरी रनिंग कमेंट्री, अब अच्छे से देखो। अभी की जस्ट अभी केस है, मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला है। शाला का लाइव भी है। फिर ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उसके ऊपर अग्निकर्म करने जाऊं तो तुरंत टंग बीच में खींच रहा था, ये बहुत था। लेकिन रुग्ण बहुत स्ट्रांग था, जो अपने इसमें शास्त्र में बोला चतुष्पाद। नेक्स्ट क्लिप लगा दो, उससे भी जो पहले बताए थे उससे नेक्स्ट क्लिप। तो रुग्ण बहुत ही स्ट्रांग था, इस वजह जो चतुष्पाद बोला है। नेक्स्ट क्लिप लो। कांची भी, यानी जो तुरटी बोलते हैं मराठी में, एलम, तो वो भी यूज करके देखा, नहीं रुक रहा था ब्लीडिंग, स्टॉप ही नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी कीवर्ड बोल सकता हूं अग्निकर्म में, इतना भी कुछ मैं बड़ा नहीं हूं। अगर कुछ पूछना है तो कोई भी मुझे कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से और कितना टाइम है, 10 मिनट है, 10 मिनट्स लेफ्ट। हाँ, जो शास्त्र में बोला है चतुष्पाद अच्छा होना, तो उसमें से जो रुग्ण है बहुत मजबूत थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अग्निकर्म करके भी रुका नहीं था, वो त्रिफला चूर्ण से ही गार्गलिंग करके ही रुका हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं। इसके सिवा तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लिप है, किसको क्वेश्चन क्या, और एक क्लिप बताओ। अभी ये गैंग्लियन फैंग्लियन कुछ जरूरत नहीं, कोई गैंग्लियन फैंग्लियन क्या क्या गैंग्लियन क्यों बोलते वो भी नहीं मालूम। लेता है कोई तो भी आता है जीबीएस क्यों, तो वो अलग अलग उनके साइंटिस्ट के मत लो, उनके नाम अपना ही लो कुछ तो भी। इसलिए मैंने पिछल, अभी पिछल ग्रंथि वर्ड है ही नहीं, डाल दिया। कोई को ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, ओपन कर देंगे पूरी तरह से। हाँ? इसमें हाँ ठीक है, सैक रिमूव तो हमारे शास्त्र में बोला है कि सैक रिमूव करना जरूरी है, जो कोश है वो पूरा निकालना जरूरी है। बंद कर। शलाका कितनी हॉट होना, ये तो टेम्परेचर नहीं गिनना है, ये भी जो एकेडमिक में कॉलेज में अपने को इतना कोई जरूरत नहीं टेम्परेचर है, रक्त वर्ण होना। मुझे एक ने पूछा टेम्परेचर कितना है, मतलब हाथ लगा के देख, पे रखना है। हाथ लगा के देख टेम्परेचर कितना, मुझे बताओ। ये बेफिजुल में हमको किस में तो भी अटका रहा है। हीट नहीं होती है। आरक्त वर्ण बोलो, कपोत वर्ण। एक ने पूछा सर कपोत वर्ण क्या होता है, मतलब कपोत वर्ण होता है। मैंने ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट उन्हें नहीं मत समझाओ, अपने लोगों को समझाओ। कबूतर होता है, इसी कलर रहता है, ये बोलो, लेकिन इन लोगों को मत समझाओ, कोई जरूरत नहीं है। समझा के हम हमारी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। आता होता है क्या? लावतानाच होतोय ना। मैं भी डर रहा हूं, ये भी देख लो, मैं खुद डर रहा हूं। मैं हर एक केस करने के पहले डरता हूं, और डरना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। चंद्र कुमार मुझे हंस रहे हैं, तो वही बोल रहा हूं कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत बड़े बड़े लाइपोमा निकल रहे, कुछ थोड़ा जाइलोकिन वगैरह यूज करते लेकिन बोलते नहीं। मैंने उनको बोला ऐसा मत करो, बोलो, ऐसे फंसाओ मत किसको। क्योंकि देखो हम इस स्टेज पे से कुछ लेक्चर देते हैं और कुछ गलत बातें बोलते हैं ना, वो फिर बहुत गलत मैसेज जाता है, फिर कोई तो भी कुछ अलग करता है। चंद्र कुमार इन्होंने बोला ये सुई चुबाना है, चुबा दिए। मैंने बोला शलाका गर्म करके लगाना है, लगा दिए। तो अगर तुमने ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आएगा, बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट क्लिप निकला, वैसे ही कम होते जा रहे हैं। एक खास बात देखा क्या, जैसे अग्निकर्म करते हो कि तुरंत उसकी साइज अपने आप कम होने लग गया। अपने आप मीन्स अग्निकर्म से
हुई तकलीफ हो गया ओपन हो गया है। अरे अरे मत रे हो रही क्या तकलीफ हो रही बहुत हो रही तो तकलीफ हो रही तो वहां बोलना जबरदस्ती नहीं तो हम तो कर जलाते जाएंगे अंदर। क्योंकि ये जो वेदना है, वेदना लक्षण शास्त्र में बोला है, कपोत वर्णता अल्प स्वेथु वेदना शुष्क संकोचित व्रणता च माउस दग्धे। कोर्ट में भी केस स्टैंड हो गई तो हमने यही बोलना है जज को कि ये आया था, हमने ये किया है, इसलिए हम रुक गए, ये बोलना है। फिर कपोत वर्ण चलता नहीं तो फिर कपोत वर्ण सिखाया क्यों? मत सिखाओ हमको कपोत वर्ण, कोई जरूरत नहीं कपोत वर्ण, वो श्लोक निकाल लो। ये बहुत यानी बहुत जगह है। ये बैग है, ये फ्लूइड आया है ना, इसको पूरा पंक्चर करके इसको क्या बोलते मिलिट्री में एसआरपी क्या उसमें था प्रॉब्लम था, इसलिए ये निकाला। सर्जन स्टिच लेता था, रोज के रोज अपडेट हमने स्टिच ने लिया, छोड़ दिया, बराबर सिलेक्शन हो गया उसके। यानी वो उन कुछ नहीं, वो उसने बोले क्या हुआ तो बोला झूठ मत बोलना, बोले मैं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा निकाला तो वो तो निकाल देंगे मुझे बाहर, बोला झूठ मत बोल, सिर्फ बोलना। चटका लगा, बोला चटका ही लगाया था बस, क्या क्या अग्निकर्म वगैरह मत बोल, चटका लगा था, जख्म हो गई। अभी ये जो बैग दिख रही है ना मुझे, मैं इसको अग्निकर्म कर दूंगा बैग को। एक अभी इसके पहले क्लिप भेजा है, उसमें मैंने ये देखो कपिल वैद्य कपिल कर रहे हैं, शलाका घुमाओ ऐसा है। और जो स्टूडेंट आते हैं वो कर रहे थे। ये बैग निकाली मैंने। हाँ, किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो श्लोक बोला है उस श्लोक में सबका आभार प्रदर्शन या सबका हुआ है, और सभी जन सभी लोग ये कोशिश करो ऐसे बोलने की सब जगह, क्योंकि एक ही सूत्र में सब आता है। ये सूत्र, ये सर्किट है, सॉफ्टवेयर है जो शास्त्र में बताया है। क्योंकि मैं सर को वही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सूत्र का सर्किट हम इधर मत बोलो, हमारे इसमें बोलना ठीक है, लेकिन सर्किट बोलेंगे फिर वो उनकी एक हमारा पेटेंट है, सर्किट वर्ड हमारा है, ऐसा हो जाना है। क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है तभी हमको सब बातें समझ में आती हैं। तो दूसरी रेड आउट लाना। थैंक यू। अभी की वर्ड में वापस एक आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सत न ज्ञानम न शास्त्रात एव जायते। सिर्फ और सिर्फ शास्त्र पढ़ के आने वाला नहीं है, आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ो और खुद को समझाओ। कोई जरूरत नहीं है कि इधर जाऊं मैं, वहां जाऊं वहां, सिर्फ पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी, क्योंकि कोई आएगा नहीं और आपके पॉलिश करेगा या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपके इसमें अपडेट कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। या डॉक्टर मुंडे बसा। थैंक यू। Thank you so much, respected Vaidya Uday Talhar sir, for that insightful keynote address. All of the attendees' minds must be buzzing right now, not with the chaos we sometimes associate with an emergency, but with the profound clarity and confidence that the wisdom of Ayurveda can bring to the critical situations. With the help of Agni Karma and Viddha Karma, all of the attendees and delegates will surely implement it in their practices. Now, I request Dr. Purva to announce special recognition prizes. We'll deliver some of the prizes here. For that, I request respected Vaidya Chandrakumar Deshmukh sir to grace the stage with his presence. Thank you. Please come onto the stage as I call your name. Pankaj Tiwari sir, for his Viddha Karma case, rupees 6,000. But I think sir has left with Tapan Kumar sir. We'll move on to the next person. Dr. Krishna Zamdar with the cash prize of rupees 3,000 rupees. Aradhya Mundane, cash prize rupees 1,000. Please come on the dais as fast as you can.
Aradhya is also not present. Shraddha Joge, cash prize rupees 1000. I think she is also not present. Rameshwar Dudhate, cash prize 1000 rupees. Posam Siva Priyanka, cash prize rupees 1000. Adinath Nagre, cash prize rupees 500. Saili Shinde, cash prize rupees 500. Komal Pawar, cash prize rupees 500. Rohit Prabhu, cash prize rupees 500. Akash Avchar, cash prize rupees 500. And Akash Naik, cash prize rupees 500. Is Komal Pawar present? Okay. Rohit. Let's give them all a very big round of applause. To conclude the prize distribution ceremony, I call upon Sanika Virkar to give the vote of thanks. Thank you, Dr. Chandrakumar Deshmukh sir, for gracing the stage, and thank you, Purva, for announcing the prizes.